Okay, so very good morning to all the students and have a wonderful weekend ahead. And in today's lecture, we will start with the next part of our error correction and detection algorithm, that is cyclic codes. Okay, so cyclic code is again one of the technique through which we are able to detect whether error is there in the transmitter side and the receiver side or not. Before that, we have studied the Hamming code, and under that Hamming code, one important part that we have studied is what? Adding of redundancy bit. How to calculate the redundancy bit? That part also we have studied by applying the formula of 2 raised to n. And depending on the even and odd parity bits, we are keeping or we are putting the value 0 and 1 on the respective places of P1, P2, P4 and P8 like that. We have studied the 4 bit of Hamming code, as well as we have studied the 7 bit of Hamming code also. In today's lecture, we are going to see one more technique for identifying whether the transmitted data is properly received by the receiver or not. If there is an error, then how to identify the error? That particular part also we have to study in today's lecture, that is cyclic codes. So cyclic codes is also called as cyclic redundancy check. Under this cyclic redundancy check, what happens? As your Hamming code is able to identify the error as well as able to resolve that particular error. Okay, Hamming code was there, जैसे वो identify भी करता है and you people are able to resolve that error also, और उसको correct करने का काम भी करता है. So correction as well as detection, both the functions are performed by Hamming code. In CRC code only detection is possible, correction is not possible. यानी आप लोग सिर्फ देख सकते हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं परफॉर्म कर सकते. आप लोग सिर्फ एरर आई या नहीं है वो चेक कर सकते हैं, आप लोग उसमें का एरर नहीं निकाल सकते. ओके, सो लेट्स सी द कंसेप्ट. Cyclic codes are the special linear block codes with one extra property. In cyclic code, if code word is cyclically shifted, the result is the another code word. Okay, that means you need whatever code is there, whatever data code is there, if you are going to rotate, or what you can say, if you are going to perform any operation on that, you will get the another code word. So how another code word will look like, how exactly it will function, that part we will see. Okay, so in cyclic redundancy check, see this is what the diagram. So in CRC encoder, focus on center part first, that is the encoder. You are having data word with you, यानी आपके पास 0101 जैसे अपन ने Hamming code में देखा था वैसा सीक्वेंस आपके पास रहेगा. Then you are applying what? The division portion here, binary division आप यहाँ पे perform करोगे. And for performing binary division, what is there? See here, the data word, you are passing data word as it is, and along with passing the data word, you need to minus the divisor portion -1. How many divisor bits are there as shown in figure? D0, D1, D2, D3. Now you are having data words from this position, from this particular part, you are having divisor from this particular part. Now, how this particular 3 zeros will come? Remember students, if you are having the divisor bits of 4, if you are having the 4 bit of divisor, then you need to minus the divisor -1. You need to subtract -1 from that. So if the divisor code is 4 bit, then the number of ones you are going to add is 3. If divisor is 5 bit, then number of zeros आप कितने ऐड करोगे डेटा वर्ड के साथ? Anyone? If divisor 5 bit, then आप लोग number of zeros वहां पे 4 ऐड करेंगे. If it is 6, then number of zeros you are going to add is what? 5. Okay, so in that way you need to add the bits. So this is what the encoder. So encoder में देखिए मैं कर्सर घुमा रहा हूं, वहां पे देखते जाइए. Data word जो आपका आएगा, that data word you need to pass. That data word is added. That particular data word is added with what? The generator and that divisor part, जो भी कुछ divisor part वहां पे रहेगा, let's say that divisor part is 4 bit. So that particular 4 bit आप लोग क्या करोगे, वहां से subtract करोगे. तो 4 - 1, so divisor -1, और उतने बिट आप लोग डेटा वर्ड के साथ ऐड कर दोगे. तो आपका डेटा वर्ड कितने बिट का बना स्टूडेंट? यहाँ पे 4 बिट्स प्लस 3 बिट्स, टोटल 7 बिट का बना. ओके, सो दिस 7 बिट इज डिवाइडेड बाय डिवाइजर.
This 7 bit is divided by divisor. Always remember, this 7 bit is divided by divisor. This is what the beauty of this particular algorithm. Okay, then आपने ये डिवीजन करने के बाद आपको एक तो मिलेगा क्वोशंट और दूसरा मिलेगा रिमाइंडर. सो सी हियर, आपने ये डेटा वर्ड एज इट इज कैरी किया. डेटा वर्ड कैरी करने के बाद आपने ये डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आपको जो पोर्शन मिला, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, योर रिमाइंडर पोर्शन. ओके, सो you are getting the reminder also. तो आपको यहाँ पे रिमाइंडर भी मिलेगा. So this is all about what, the sender portion. रिसीविंग पोर्शन में डिकोडिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा. आपके पास अभी अवेलेबल क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो डेटा मिला है इसको अनरिलायबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि अभी तक रिसीवर ने उसको प्रॉपरली ग्रांट नहीं किया है, उसको आइडेंटिफाई नहीं हुआ है कि डेटा में एरर है या नहीं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अनरिलायबल. तो देखिए, ये डेटा एज इट इज आपने यहाँ से पास किया. अभी आपके पास 7 बिट का कोड वर्ड है. आपके पास कितने बिट का कोड वर्ड है? बिट B3, B2, B1, B0, Q2, Q1, Q0. ये 7 बिट का कोड वर्ड आपने यहाँ पे चेकर को दिया. ये चेकर क्या करेगा, फिर से डिवीजन परफॉर्म करेगा, और डिवीजन परफॉर्म करने के बाद जो डेटा वर्ड यहाँ से पास हुआ था सेंटर साइड से, अगर वही डेटा वर्ड फिर से रिसीव हो जाता है तो समझ लो आपका डेटा प्रॉपरली है, अदरवाइज आपका डेटा प्रॉपर नहीं है. यानी अपन उसको रिवर्स प्रोसीजर करेंगे. अब एग्जैक्टली सॉल्व कैसे करते हैं, किस वे से ये चीजें परफॉर्म की जाती है, अभी उसका एग्जांपल लेके मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ. ठीक है, so is my camera is visible, students? Yes, sir. Okay, now we will take one of the example. मैं आपको एग्जांपल सॉल्व करके बताता हूँ और फिर आपको समझ में आएगा. ओके, सो द एग्जांपल इज व्हाट, यहाँ पे क्लियर कट, यहाँ पे सॉरी मैं एक्चुअली लेफ्ट हैंडेड हूँ, थोड़ा स्क्रीन मेरा टेढ़ा हो जाता है. आप थोड़ा सा आपका मोबाइल का स्क्रीन मेरे यानी रोटेशन के हिसाब से एडजस्ट कर लो. ओके, सो सी हियर, सो CRC फॉर डेटा ब्लॉक, यानी आपका जो डेटा ब्लॉक है यहाँ पे वो क्लियर कर दिया हुआ है. व्हाट इज द डेटा ब्लॉक? 100 100. ओके, इसको बोला जाता है डेटा वर्ड. आपको डायग्राम में मैंने बताया, सॉरी वर्ड, आपको डायग्राम में मैंने ऑलरेडी बताया था कि अपना जो डेटा वर्ड है अपन यहाँ पे क्या करेंगे, मेंशन करेंगे. वंस द डेटा वर्ड इज मेंशन, देन व्हाट इज आवर नेक्स्ट टास्क? नेक्स्ट टास्क इज आल्सो गिवन विद द डिवाइजर. दैट मींस डिवाइजर इज आल्सो गिवन. डिवाइजर आपका क्या दिया है स्टूडेंट्स? 1101. ओके, अभी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने, तो मुझे बताइए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे बाइनरी डिवीजन करना है स्टूडेंट्स. ओके, तो बाइनरी डिवीजन में डिवाइजर कहाँ लिखते हैं अपन? यहाँ पे लिखते हैं 1101, और आपका जो डेटा वर्ड है वो क्या लिख लेता हूं मैं यहाँ पे 100100. नाउ मैंने ऑलरेडी आपको बताया इस पर्टिकुलर डेटा वर्ड में से अपन क्या करते हैं, माइनस करते हैं. ओके, सो डिवाइजर -1, तो कितने बिट मिलेंगे मुझे? 4 बिट है ना डिवाइजर के, -1 किया, कितने बिट मिलेंगे? 3 बिट. हाउ मेनी बिट्स आई एम गेटिंग? 3 बिट्स. और ये 3 बिट्स अपने को 000 पुट करने हैं. कहां पे पुट करने ये 000? यहाँ पे. सो पुट 000. अब आपने 3 बिट 0 पुट कर दिए. समझ में आया आपका कोडवर्ड कैसे बना? यहां तक समझ में आया स्टूडेंट्स आपको? Yes, sir. आपके पास डेटा वर्ड दिया है. व्हाट इज द डेटा वर्ड? ये वाला, दिस इज द डेटा वर्ड, राइट? दिस इज द डेटा वर्ड. ओके, आपको क्या करना है, डिवाइजर के कितने बिट से? 4 बिट. 4 बिट में से क्या करना है, एक को माइनस करना है. तो माइनस करने के बाद 4 - 1 करोगे तो 3. तो ये 3 बिट आपने क्या किया, 0 अपेंड किए, जो अब मैंने ऑलरेडी आपको लॉजिक बताया था साइक्लिक रिडंडेंसी चेक का. अभी अपना नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, आप लोग जो ये डिवीजन ऑपरेशन करेंगे, XOR ऑपरेशन रहेगा. क्या रहेगा? XOR ऑपरेशन. नाउ अभी हरदम ध्यान में रखो, अगर ये लेफ्ट मोस्ट बिट अगर आपका 1 रहेगा तो आप लोग क्या करो, इसको क्वोशंट बोलते हैं ऊपर वाले पोर्शन को. तो यहाँ पे 1 पास करो और ये यहाँ पे एज इट इज लिख लो. क्या होगा? 1101. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द XOR ऑपरेशन हियर? XOR ऑपरेशन क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे? कैन एनीवन टेल मी? 0 क्या 11 क्या होगा? 0 0 0 0 1. 1. इस पर्टिकुलर बिट के ऑपरेशन करने के नहीं, इसको छोड़ देने का. क्यों छोड़ना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा. ठीक है, अभी देखिए आपका क्या क्या मिला आपको यहाँ पे. ये 4 बिट आपने लिए थे, इस 4 बिट के साथ आपने XOR ऑपरेशन किया. इस XOR ऑपरेशन के बाद
इस पर्टिकुलर बिट्स को आपने समझ, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ. व्हाट इज आवर नेक्स्ट बिट स्टूडेंट्स? 0. नेक्स्ट बिट लिया मैंने 0. ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज द लेफ्ट मोस्ट बिट हियर? 1. अगर 1 होगा तो क्या करने का? राइट डाउन 1 एंड 1 1 0 1. बोलो ऑपरेशन क्या होगा? 1 0 1. इसको छोड़ दो, इसको कंसिडर नहीं करने का, तीन तीन ही बिट. नाउ व्हाट इज माय नेक्स्ट ऑपरेशन? अभी क्या लेना पड़ेगा मुझे? 0. नेक्स्ट बिट. सो टेक दिस पर्टिकुलर बिट हियर. बोलो अभी. फिर से यहाँ पे 1 आया. अगर ये 1 होगा तो आप लोगों को फिर से 1 लिखना है. बोलो 1 1 0 1. बोलिए क्या मिला? 1 1 1. 1. सब 1 1 मिला ना? यस और नो? फिर क्या करोगे आप? ये नेक्स्ट 0 आगे कंटिन्यू करोगे. यहाँ पे लिख लिया मैंने. ठीक है, नाउ टेल मी व्हाट इज द लेफ्ट मोस्ट बिट हियर? अगेन 1. राइट डाउन 1 और फिर से 1 1 0 1. फिर से इसको नहीं, इसको डिस्कार्ड कर दो. 0 1 1 1. इसका क्या बनेगा? 0. ओके, नाउ टेक द नेक्स्ट बिट. नेक्स्ट बिट क्या लोगे स्टूडेंट? 0. नाउ टेल मी व्हाट इज दिस बिट नाउ? 0. इफ इट इज 0 देन ऊपर भी 0 अपेंड करो और यहां पे भी 0 के साथ XOR करो. इफ इट इज 0. ओके, फिर क्या मिलेगा आपको? 0 0. ये ध्यान में रखो, अगर 1 होगा तो डायरेक्टली इसके साथ डिवीजन करने का. अगर ये बीट आपका, ये राइट मोस्ट बीट अगर 0 आता है तो आप लोगों को क्या करना है? ये पर्टिकुलर बीट को डायरेक्ट नीचे नहीं लेना है, इसको 0 के साथ क्या करना है? XOR करना है. तो अभी क्या मिलेगा? 0 1 1. ओके, ये मिला. और आगे आपने क्या कैरी किया? लास्ट वाला बीट क्या मिला आपको स्टूडेंट्स? 0. फिर यहाँ पे अगर 1 होगा तो आप लोग क्या करते हैं? 1 और फिर यहाँ पे क्या करोगे? 1 1 0 1. नाउ टेल मी व्हाट इज द आंसर? टेल मी व्हाट इज द आंसर नाउ? एनीवन? 0 0 1. क्या मिला? 0 0 1. 1 0. हाँ 0 0 1. हाँ ठीक है, उसने उल्टा बोला, आप लोग ऐसा चलेगा. नाउ दिस इज द रिमाइंडर. दिस इज द रिमाइंडर एंड ये सेंटर साइड का कोड हुआ. मैं एक छोटी सी समरी फिर से देता हूं स्टूडेंट्स. समरी में बिल्कुल एक चीज ध्यान में रखो, आपके पास डेटा वर्ड रहेगा. इस डेटा वर्ड के वर्ड को आपको क्या करना है? डिवाइजर से डिवाइड करना है. ये डिवाइडर में 4 बिट है. 4 बिट में से -1 करते हैं अपन, तो जो बचे हुए रहते हैं वो डेटा बिट, ये जो आपका डेटा वर्ड है, इसके यहाँ पे आप लोग लिख लेते हो. और इसके आगे 4 -1 करने का जो बिट बचते हैं वो 3 बिट बचते हैं. अगर आपका डिवीजन ऑपरेशन में राइट लेफ्ट मोस्ट बिट अगर 1 होगा तो आप लोगों को यहाँ पे 1 लिखना है और नीचे एज इट इज इसको यहाँ पे कैरी करना है. ऑपरेशन परफॉर्म करो. ऑपरेशन करते हो लेफ्ट मोस्ट बिट का ये बिट को कंसिडर नहीं किया तो भी चलेगा, यानी ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद इसको लिखने की जरूरत नहीं है. फिर आपको 3 बिट मिलेंगे. एक ही चीज ध्यान में रखो, लेफ्ट मोस्ट बिट 1 होगा तो आप 1 ऊपर लिखो और इसको डायरेक्टली डिवाइजर में रखो. लेफ्ट मोस्ट बिट अगर 0 होगा तो आप लोगों को 0 के साथ उसका एक्सॉरिंग करना है. आपको ये वैल्यू मिली. ये वैल्यू मिलने के बाद अभी आपके पास क्या बना? आपके पास टोटल क्या बना स्टूडेंट्स? एनीवन? अभी इसको आप लिखेंगे कैसा? ओके, सो लिखते वक्त देखिए, ट्रांसमिट करते वक्त यानी ट्रांसमीटर सेंडर क्या सेंड करेगा? ये आपका डेटा वर्ड एज इट इज यहाँ पे लिख लो. ये जो आपका ऊपर का डेटा वर्ड है ये वाला एज इट इज लिख लो. क्या था वो? 1 0 0 1 0 0. 1 0 0. और आपके पास रिमाइंडर क्या बना? ये आपका, आप एज इट इज लिख लो 0 0 1. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ये आप किसको भी भेजोगे? बोलो मुझे, ये पोर्शन किसको भेजोगे? रिसीवर. रिसीवर को भेजना है. चलो अभी अपना सेकंड पोर्शन चालू होगा, रिसीवर. अभी अपना सेकंड पोर्शन चालू होगा रिसीवर का. ओके, नाउ कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द हैव यू रिटन दिस पर्टिकुलर पार्ट? ओके, ये कोई तो लिखो और मुझे बताएंगे. 1 0 0 1 0 0 0 0 1. ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज द portion here?
1 0 0 1 0 0 और क्या मिला 0 0 0 ओके नाउ अभी अपन ये कौन सा कोड कर रहे हैं एनीवन रिसीवर साइड रिसीवर साइड का कर रहे हैं अपन ओके वी आर डूइंग द रिसीवर साइड कोड अपन क्या कर रहे हैं रिसीवर साइड का कोड यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं ओके तो जब आप लोग ये रिसीवर साइड का कोड यहाँ पे परफॉर्म करोगे आपको यहाँ पे क्या करना है व्हाट इज द डिवाइजर इज कॉमन और नॉट डिवाइजर दोनों में कॉमन रहेगा या नहीं रहेगा यस सर रहेगा व्हाट इज द डिवाइजर हियर 1101 1101 ये आपका डिवाइजर चलो अभी फटाफट बताइए बोलो shall I write 1 here what is the answer right next बोलो अभी आगे ये बेटा नीचे लिया now tell me again 1 shall I write 1 here again yes 1 1 0 1 क्या मिला स्टूडेंट्स 1 0 1 ओके फिर से कैरी नेक्स्ट बिट 0 फिर से आपने यहाँ पे लिखा 1 1 1 0 1 1 1 0 ओके फिर से आपने नेक्स्ट बिट लिया जब नीचे कैरी किया सॉरी इसको नहीं लिखते अपन ओके इसको नीचे लिया फिर से क्या मिला 1 मिला फिर से आपने यहाँ पे 1 लिख दिया 1 1 0 1 फिर आपने फिर से ऑपरेशन किया 1 1 0 नाउ टेल मी व्हाट इज दिस 0 ओके फिर आप नीचे ये 0 कैरी करोगे यहाँ पे ऊपर 0 लिखोगे और यहाँ पे उसको जब लेफ्ट मोस्ट 0 आता है तो आपको पता है अपन क्या करते हैं 0 1 1 ओके फिर आगे क्या करना है अपने को 1 ये नीचे कैरी करना है यहाँ पे 1 लिख दिया नाउ यहाँ पे फिर से 1 किया और 1 1 0 1 नाउ टेल मी 1 1 anyone 1 1 0 0 0 0 0 0 0 now tell me what is the reminder 0 यानी ट्रांसमीटर ने भेजा हुआ डेटा रिसीवर को प्रॉपरली रिसीव हुआ इफ रिमाइंडर इज 0 नो एरर इफ रिमाइंडर इज 1 then are you getting with this are you getting with this students यस सर okay that's great okay फिर से रिपीट करना है क्या anyone No, sir. No, sir. that's great okay so shall I give you the example now shall I give Yes. you work Yes, sir. ओके और एक चीज मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहूंगा कि आप लोगों को यहाँ पे जरूरी नहीं हरदम कि आपको ऐसे ही दे ओके अभी आपको एक छोटा सा टास्क मैं यहाँ पे चेंज करके देता हूँ उस टास्क को आप लोग अंडरस्टैंड करो ओके इतना भी चल जाए ठीक है अभी देखिए अभी यहाँ पे एक होमवर्क के लिए आप लोगों को इस वे से मैं देता हूं फाइंड CRC फॉर 11100100101 ओके विथ डिवाइजर x⁻³ प्लस x⁻² प्लस 1 मुझे बताइए आपको पहले के एग्जांपल में मैंने क्या दिया था स्टूडेंट डिवाइजर क्या था आपका डायरेक्टली क्या प्रोवाइड किया था आप लोगों को 4 बिट्स बिट्स प्रोवाइड किए थे कभी कभी आपको बिट्स प्रोवाइड नहीं होंगे आपको डिवाइजर ऐसे पॉलिनोमिनल फॉर्म में दिया जाएगा ओके कभी कभी आपको ये जो ऊपर का डेटा वर्ड है ये भी आपको ऐसे बिट में नहीं दिया जाएगा पॉलिनोमिनल फॉर्म में दिया जाएगा तो पॉलिनोमिनल का आपको कन्वर्जन करना है तो दैट इज रियली द इजी टास्क एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे समझाता हूं x⁻7 प्लस x⁻5 प्लस x⁻2 प्लस x प्लस 1
ये वाला एग्जांपल आपको दिया, ये 7 है स्टूडेंट्स। ओके, तो अभी अभी मुझे यहाँ पे बताइए x⁻7 यानी पॉलिनोमियल में क्या बना 1। मुझे बताइए यहाँ पे x⁻6 से क्या x⁻6 x⁻4 है क्या? No, sir. तो यहाँ पे डालो 0, यहाँ पे डालो 0। ओके सॉरी, हाँ x⁻6 नहीं, वो 0 डाला। अभी क्या है नेक्स्ट, x⁻5 है। अगर 5 है तो वहां पे क्या लिखोगे? 1. 1 1। 4 है क्या आपके इसमें? 4 है क्या इसमें नहीं. पॉलिनोमियल में? नहीं, तो क्या लिखोगे? 0. 0। 3 है क्या? 0. 2 है क्या? Yes. 1. 1 है क्या? One. x से क्या 1, और ये जो एज इट इज है कांस्टेंट एज इट इज। तो ये क्या बना आपका? ओके, नाउ टेल मी द डिवाइजर वैल्यू, जो ऊपर वाला है देखो होमवर्क में दिया हुआ। नाउ टेल मी द डिवाइजर वैल्यू स्टूडेंट्स। 1101. 1101. 1101. देखिए x3 प्लस x2 प्लस 1 क्या हुआ? 1 1, x है क्या? नहीं, 0 1 बन गया आपका डिवाइजर। तो इतना डिफिकल्ट टास्क है क्या ये? नहीं। ओके, ये एग्जाम्पल आपको एग्जाम में 6 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपकी ऑनलाइन एग्जाम होती है, एमसीक्यू एग्जाम होती है, तो आप लोगों को वहां पे क्या करेंगे, एक आपको डेटा वर्ड देंगे और एक, हाँ तो यहाँ पे मुझे बताइए, मुझे कितने जीरो अपेंड करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स? हाउ मेनी जीरोस आई हैव टू अपेंड? 3. 3. 3. 3 श्योर? Yes. हाउ? So divisor bits -1. तो यहाँ पे क्या ऐड करोगे आप? 0 0 0 और डायरेक्टली ऑपरेशन शुरू करो। अभी आपका ये कैसे बनेगा? सी 1 1 0 1, और आपका ये क्या बनेगा? 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1। एक ही लॉजिक ध्यान में रखने का, लेफ्ट मोस्ट बिट अगर 1 होगा तो डायरेक्टली स्टार्ट कर देने का। ओके, और लेफ्ट मोस्ट बिट अगर 0 होगा तो फिर 0 के साथ अपेंड करने का। समझ में आया स्टूडेंट्स? लेकिन ये टेक्नोलॉजी मुझे बताइए, आप लोगों को एरर डिटेक्ट तो करके देखी, लेकिन करेक्शन के लिए कोई चांस है क्या? नहीं. नॉट एट ऑल। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? सीआरसी कोड। ये हुआ आपका सीआरसी कोड के बारे में। सो इज इट क्लियर? आपको ये होमवर्क लिख लिया आप लोगों ने? होमवर्क, अदरवाइज टेक अ स्क्रीनशॉट। ये होमवर्क आपको सॉल्व करना है और मुझे भेजना है। फाइंड सीआरसी फॉर दिस नंबर एंड डिवाइजर इज आल्सो गिवन। ओके, आपको एग्जाम में अलग अलग वैसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपको आंसर निकालते आना चाहिए। देखिए, आप लोगों को जब ऑलरेडी कोड वर्ड दिया जाता है तो समझो आप लोग ट्रांसमीटर साइड से भी रिसीवर साइड पहुंच चुके हैं, ये आपकी रिसीवर साइड। और जब आप लोगों को सिर्फ डेटा वर्ड दिया जाता है, ओके, जब आप लोगों को सिर्फ डेटा वर्ड दिया जाएगा तो समझ लो मुझे ये पूरा इसके साथ अपेंड करके पूरा सॉल्व करना है और ये रिसीवर साइड में भेजना है। ये रिसीवर साइड में भेजने के बाद इसको चेक करो, अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है तो वहां पे कोई एरर नहीं है, रिमाइंडर आपका नॉन 0 आता है तो वहां पे एरर है। तो दिस इज ऑल अबाउट सीआरसी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स नाउ? इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, नाउ अगेन बैक टू द पॉइंट। ओके, जो आपको इसमें सम्स सॉल्व करने थे वो सम्स वाला पोर्शन मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। ओके, दैट पर्टिकुलर सम पोर्शन आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड। ओके, नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर। देखिए, इसके भी लिए एक बहुत अच्छा वीडियो है, आप लोगों को फिर से मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, अभी आजकल एक चीज मैं आप लोगों को बहुत प्रॉपरली क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे। ऑलवेज रिमेम्बर, नाउ यू आर मैच्योर्ड इनफ। आप अभी बहुत बड़े हो चुके हो, राइट? बहुत यानी और बड़ा होना है, लेकिन मैच्योर्ड हो चुके हो, ऐसा बोल सकते हैं। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर अबव 18 नाउ, राइट? तो यहाँ पे टीचर का रोल होता है एज ए इंस्ट्रक्टर, एज अ गाइडर। ओके, एंड नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ स्टूडेंट हियर? आपको उंगली पकड़ के चलाना हमारा काम नहीं है अभी आप लोगों ने खुद से लर्निंग करना या चीजों को सीखना बहुत जरूरी है। ओके, क्योंकि कंपनी में देखिए, आप लोग जो कोड करते हो ना, अभी मुझे बहुत सारे स्टूडेंट मिले, और जब बहुत सारे एल्यूमिनीज मिलते तो वो क्या बोलते हैं, सर एक बार वो पर्टिकुलर कोड में गिर गए तो वही टाइप का कोडिंग हमको बार बार आता है।
मशीन लर्निंग एक बार सीख गए तो हम लोग मशीन लर्निंग ही सीखते हैं, लेकिन मशीन लर्निंग के साथ अगर मुझे कुछ नया सीखना है तो मुझे रोज सर 1 घंटा देना पड़ता है मेरे ऑफिस आवर्स में, क्योंकि मेरा लाइवलीनेस वहां पे मुझे क्या करना है, मेंटेन करना है। तो लिसन स्टूडेंट हियर, सर पढ़ाएंगे, फिर वो जिस वजह से एक्सप्लेन करते हैं फिर हम लोग सॉल्व करेंगे, नो, स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम योर सेल्फ। एक अंदर से आप लोगों के अंदर वो चीज आनी चाहिए। इसलिए हम लोग यहाँ पे कॉलेज में भी हम लोगों को बताया जाता है कि यू पीपल आर द इंस्ट्रक्टर। अपने हायर अथॉरिटीज क्या बताते हैं, यू पीपल आर द इंस्ट्रक्टर, यू इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट। उस इंस्ट्रक्शन पे स्टूडेंट को चलना जरूरी है, खुद से पढ़ना बहुत जरूरी है। ओके तो मैं हरदम आपको बोलता हूँ, और बहुत एवरी डे स्टार्ट वॉचिंग डिफरेंट मोटिवेशनल वीडियोस, स्टार्ट लर्निंग द न्यू थिंग्स। रोज एक आधा घंटा कुछ तो नया टेक्नोलॉजी का पढ़ो। ओके तो सीआरसी का ये भी कोड जो है, जो मैंने आपको बताया है, वो चीज भी नेट पे अवेलेबल है स्टूडेंट्स। आप लोग और अच्छे से उसको और ब्रीफली समझ सकते हो और वहां से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हो। ओके तो यहाँ पे सीआरसी एरर करेक्शन डिटेक्शन ये लिखना है आपको, वीडियोस में जाना है, और मुझे जो अभी तक के बेस्ट वीडियोस लगे, नेट पे बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है स्टूडेंट, उसमें से जो बेस्ट वीडियो मुझे लगा है, मैं हरदम आपको बोलते रहता हूँ, ये वाला है। ओके दैट इज द नेसो एकेडमी। ओके तो ये जो बंदा है ये काफी अच्छे से एक्सप्लेन करता है, और आप लोगों को ये सॉल्व भी करना है। जो मैंने होमवर्क आपको दिया है वो इसी वीडियो में से दिया है। ओके सो ट्राई टू लर्न दैट, ओके ट्राई टू ग्रैब दैट पर्टिकुलर थिंग। इसमें 2 पार्ट है स्टूडेंट। पार्ट lecture in the computer network series and we are ओके तो आप लोग है ना इसको देखो, ये नैजो एकेडमी को सब्सक्राइब करके रखो, और सब्सक्राइब करने के बाद पार्ट 1 में अपन सेंडर साइड देखते हैं, और पार्ट 2 में अपन क्या करते हैं, रिसीवर साइड। देखो ये है आपका पार्ट 1 और ये है आपका पार्ट 2। ओके तो रिमेंबर स्टूडेंट्स, सर आपने वीडियो अपलोड नहीं किया तो डोंट वरी, ऐसे कुछ जरूरी नहीं है, आप लोग यहाँ से भी देख के कर सकते हैं, और मैं जो मेरा वीडियो रहेगा वो तो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट the portion that we need to understand. Now we have to focus on the next portion, next part. Okay because this that means example part or analytical part we already covered, and we move towards the next portion of this particular unit, जो आपका क्या होगा, अभी मैक लेयर के रिलेटेड होगा। ओके तो वो पोर्शन को क्या करेंगे अपन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, और इसके अंदर अपन सबसे पहले देखने वाले प्योर अलोहा एंड स्लॉटेड अलोहा। अभी आप बोलोगे सर ये प्योर अलोहा स्लॉटेड अलोहा होता क्या है। ओके सो स्टूडेंट्स, प्योर अलोहा एंड स्लॉटेड अलोहा, ये जो दोनों पोर्शन होते हैं, इसमें से आपको समझ में आएगा कि डेटा जब आप लोग पास करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के ऊपर, ओके सो व्हेनेवर यू पीपल आर ट्रांसमिटिंग द डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, तो चैनल को पता नहीं रहता है, वो जो चैनल आपके होते हैं उस चैनल में आपको पता नहीं रहता है कि डेटा, लेट्स से एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मैंने बोला कि ऑल ऑफ यू अनम्यूट योरसेल्फ, ओके एंड गिव मी द आंसर। देखिए आपको पता नहीं कि आपका फ्रेंड कब आंसर देने वाला है, ओके और आपके फ्रेंड को पता नहीं कि आप कब आंसर देने वाले हो। सो कैन यू इमेजिन देयर इज अ चांसेस ऑफ कोलिजन ऑफ डेटा। जब मैं आपको आंसर पूछता हूं, एट ए टाइम 2 लोग अगर आंसर देंगे जूम में तो कोलिजन होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट कोलिजन व्हाट हैपन, आपका डेटा सामने वाले को रिसीव नहीं हो सकता है, आपका फ्रेम लॉस हो सकता है। सिमिलरली प्योर अलोहा स्लॉटेड अलोहा, ये कंसेप्ट अभी अपने को सीखना है, और प्योर अलोहा स्लॉटेड अलोहा में एग्जैक्टली होता क्या है, इसका जस्ट स्टार्ट अपन करते हैं आज, और फिर आपको नेक्स्ट इसमें और डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। ओके आई हैव द पीपीटीज ऑफ दिस, in today's lecture आई हैव द पीपीटीज ऑफ दिस आल्सो, लेकिन एक बेसिक कंसेप्ट आप लोग यहाँ पे समझ लो कि आपका एक चैनल होता है, चैनल में से डेटा पास किया जाता है। नाउ जूम के अंदर 43 स्टूडेंट्स आर देयर, 43 स्टूडेंट्स एक चैनल के अंदर कम्युनिकेट कर रहे हैं मेरे साथ। सो व्हेन आई एम डिमांडिंग समथिंग फ्रॉम यू पीपल, आप में से बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो आंसर देने का ट्राई करेंगे, आंसर देते वो क्या होगा, डेटा कोलिजन हो सकता है, डेटा का क्या हो सकता है, एक के ऊपर दूसरा कोलिजन के साथ ओवरलैप हो सकता है। तो अभी सिर्फ आप लोग समझ लो, नेक्स्ट कंसेप्ट में अपने को वही देखना है कि कोलिजन होता कैसे, कोलिजन को किस वजह से अपन अवॉइड कर सकते हैं। ओके आपको ये वीडियो का आवाज आ रहा है, जो वीडियो मैंने अभी लगाया था, यस और नो? तो आवाज आ रही है पर वीडियो दिखने रहा है। हाँ वीडियो मैंने पॉज किया अभी, लेकिन आवाज आ रही है आपको वीडियो की? Yes, sir, but screen share is we'll stopped. see the pure Aloha protocol. As usual, let's start the session with the outcomes. In today's lecture, we have 3 outcomes. Let's see what are they. Upon the completion of the session, the learner will be able to. Outcome number 1, we will know the various multiple access protocols. स्क्रीन में दिख रहा है Outcome अभी? number 2, we will understand the collation. Yes, And sir. outcome number 3, we will understand the pure Aloha protocol. Before going into the collation and pure Aloha,
let's know the various multiple access protocols. We know the multiple access protocols are of three types. Number 1, random access protocols. Number 2, controlled access protocols. And number 3, channelization protocols. In today's lecture, we are going to see the Aloha protocol. You may be wondering, in the title it is mentioned as pure Aloha, and here it is mentioned as simply Aloha. We will deal with it shortly. Let's start. With Aloha. Aloha is a random access protocol. It means any station can send the data at any time. And actually Aloha was designed for wireless LAN, but it is also applicable for shared medium. Aloha, when it was created, it was mainly designed for WLAN, that is wireless LAN. In order to connect two different places using wireless technology, they actually invented Aloha, but it is also applicable for shared medium. When we talk about point number 1, that is, it is a random access protocol, obviously any station can transmit data at any time. What if two or more stations transmit the data at the same time? When two or more stations transmit the data at the same time, it leads to collision. In this, multiple stations can transmit data at the same time and can hence lead to collision. And the data being garbled, and this data will not be useful data. It will be either lost or corrupted. Now in the point number 3, it is mentioned as it leads to collision. So we will see what is collision now. Suppose if there are two stations, station A and station B, and station A and B have a common medium, that is the shared medium. So this is the medium where A and B are going to transmit their data. What if A and B send the data at the same time? Suppose A has a frame which is named as A frame and B also has a frame which is named as B frame. Just observe, A is also sending the data and B is also sending the data at the same time. What happens when A and B send their data at the same time? Boom! It leads to collision. So the frames are either lost or corrupted. Therefore, it becomes unusable. We know Aloha is a random access protocol, so any station can transmit data at any time. So obviously it leads to collision. Somehow Aloha protocol has to handle this. We will see how collision is handled by Aloha protocol shortly. Before that, let's see what are the various types of Aloha. We have basically two types of Aloha. Number 1, pure Aloha, and number 2, slotted Aloha. In today's lecture, we are going to focus only on pure Aloha. Before going into the theoretical perspectives, let's understand what is pure Aloha. In this scenario, we have 4 stations, station 1, 2, 3 and 4. We have a shared medium and this shared medium. Students, see here, we are having 4 stations with us. Only one channel is there, यानी एक channel यानी guided medium or unguided medium, and all are sending the frames at their own time. Frame 1 जो station 1 होगा वो frame 1.1 भेजेगा. इस पर्टिकुलर टाइम में देखो कोई फ्रेम नहीं भेज रहा है, लेकिन यहां से आगे जाते वक्त छोटा सा एक माइनर कोलिजन यहाँ पे हो सकता है. जब फ्रेम 1.2 भेजी जा रही है, फ्रेम 2.1 भेजी जा रही है, फ्रेम 3.1 भेजी जा रही है, फ्रेम 4.1 भेजी जा रही है एक ही चैनल के अंदर, सो देयर इज अ कोलिजन. देयर इज अ कोलिजन बिकॉज ये प्योर अलोहा में क्या होता है, हर अपना स्टेशन अपने अपने टाइम के हिसाब से क्या करता है, काम करता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट collision happens. See here again, frame 2.2 and frame 4.2 both are collide with each other. इस particular time frame के अंदर वो collide हो रहे, but frame 3.2 ये properly सामने वाले को मिल जाएगी. If you observe the delivery rate here, only frame 1.1 and frame 3.2, these both the frames are delivered properly to the receiver. Yes or no?
Are you getting only 2 frames out of how many frames? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Out of 8 frames, only 2 frames are delivered. Rest of the frames are collide with each other. Boom is there, and those packets will get corrupted or lost. Okay, is it clear? Is it clear, students? समझा या नहीं समझा? Yes, sir. ओके, तो नेक्स्ट इसमें लगे तो और डिटेल में अपन इसको देखेंगे. ओके, is common for station 1, 2, 3 and 4, and this is the timeline. So this time is also common for everybody, but for understanding purpose it is mentioned separately. But actually the time is common for all the stations and the medium is also common for all the stations. Let's assume station 1 is now placing its frame on the medium. At this time station 2 is not placing anything, station 3 is not placing anything, and station 4 is also not placing any frames on the shared medium. Obviously, it will not lead to collision. This will be a successful transmission because station 1 alone is transmitting its frame, station 2, 3 and 4 are not transmitting. So frame 1.1, that is station 1's first frame, will not be collided. Let's see this part now. In this case, let's assume station 3 has started its transmission here. At this time, nobody is transmitting their data. So this data is being transmitted, but this time station 2 is coming into picture and placing its frame on the shared medium. So what happens? These two will be colliding with each other. Meanwhile, station 4 is also placing its data on the shared medium at this time, and station 1 is also placing its data at this time. If you observe between this time period, there are 4 frames on the channel.